Okay, ji. So today in this lesson, we'll be solving two papers in a one go. The left side is paper one of 4024 maths, means O levels mathematics GCE, and the right side paper is 0580 October November 22. It's paper 22. You can see that both the syllabuses have very much in common, but in IGCSE we are allowed to use the calculator in both the exams. And you can see that in GCE, electronic calculator must not be used in this paper, right? So first of all, we have to see one by one that Kashif, you can also get a question in IGCSE that how to solve a decimal without a calculator. Agree? Or they can give you a question that without using a calculator, simplify or work out this. Okay. So the technique is 80 divided by 0.02 is, can I write 2 by 100? So I can Yes, write sir. 2 by 100 like that. So now multiply it. तो ये shift हो जाते हैं upside down. Yes or no? So we Yes, know sir. this with the help of some cutting purposes, cutting formulas, we can simplify this to 102 and 40. So 40 times 100 is 4000 is your final answer. Is this clear, everybody? Yes, sir. Okay, then in the second part, they say evaluate. Evaluate means calculate. Evaluate means what? It means calculate. So it says that cube root of 1000. So can I write cube root like that? And I'm going to write 10 cube in place of 1000. Can I write this? Yes or no? Yes or no? Everybody? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So now cube and cube root cancel. So the result is 10. Okay. Now they say that in the third question, put one pair of bracket into this calculation to make it correct. Okay, I know that I have to do something on the left hand side because if I apply bod mass, the answer is not 4. Obviously, agree? But I have to apply some brackets here. Let's try the bracket from the right side. So, for example, if this is the bracket, so it would be 8 times 4 minus 4 is not equals to 4. So that's wrong. So we have to change the strategy now. Let's enclose the last two. So 4 minus 4 is 0. So 4 plus 4 times 0 is equals to 4. Yes, this is equals to 4. So this is the correct way to put the bracket in. Is this clear, everybody? Everybody? Because we Yes, were sir. requested to put one pair of bracket. बेटा जहाँ पे समझ ना आए क्वेश्चन पूछे, ठीक है? ठीक है सर. ओके, हूर एंड नूर बेटा क्लियर हो गया आपको भी? Yes, sir. Yes, sir. Now in the third part, it's part B. They say that workout. Now we can see that in maths we have bracket, division, multiplication, addition, and subtraction. So first of all, let's simplify the bracket. So minus 6 times 4. Yes or no? Because minus 3 plus 7 is 4 and 6 fours are 24. So answer would be minus 24. Is this clear, everybody? Yes or no? Any questions? No, sir. Okay. Now they say that 7.54 multiplied by 10 is to power minus 4. So काशिफ बेटा यहाँ पे देखे 10 की पावर minus 4 है, इसका मतलब है this number is less than 1. Okay. जी सर. तो if this is less than 1, अगर माइनस हो तो आपने पॉइंट को लेफ्ट पे लेके जाना है और अगर प्लस में हो तो आपने पॉइंट को राइट पे लेके जाना है. ओके बेटा, तो आप लिख लो 7.54. अब 4 jumps towards left, तो 1 2 3 and 4. So point is now here. So we have this much answer. So 0.000754 is the ordinary number and this above is the standard form. You know this already. Is this clear, everybody? Is this clear, everybody? Any questions so far? Noor, Hoor? No, No, sir. sir. Okay, so we are done with the page number 1 of O levels. So let's try the page number 1 of IGCSE. So let me just short this paper. Okay, look at here. We can see that the diagram shows an isosceles triangle. Isosceles means two sides are equal, as you said. You can see that there are the marks like that.
and this side is facing 34, so automatically this side will must face 34, right, Hoor and Noor? So x would be x is equals to 180 minus 34 minus 34. As calculator is allowed, so it's a piece of cake. 112 degree is the answer for the x. Is this clear, everybody? Yes, sir. Okay. The second part of the question is simplify. So that is y multiplied by 27 minus y multiplied by 77. We can see that it's a multiplication. So no need to subtract first. Okay. So that would be 27y minus 77y. So as they are एंड इसमें like से terms, कॉमन so लेंगे, 27 इसके बाद फिर माइनस करेंगे. कॉमन ले लेंगे ना ले एक ही बात है, सिंप्लीफाई करना है ना, y में से y निकालना है, तो माइनस 77 इज द ग्रेटर वैल्यू, तो आंसर माइनस में आएगा. 77 minus 27 is minus 50y. Yes or no? यस सर. This is the final answer. Okay. Then the question number 3 is find the sum of 3 square and minus 3 square. So we have to just understand this. Sum means in maths plus sum of 3 square plus, and that would be minus 3 square. Is this clear? So I can write this in bracket. Okay. As you know this in indices, if minus 3 is facing whole square, so the answer is plus 9. But if the minus 3 square is in this design, the answer is minus 9. Is this clear, everybody? यस सर. होल स्क्वायर तो है नहीं ना, देखो 3 के ऊपर स्क्वायर है, माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ. So it would be 3 square minus 9. So 9 minus 9 is what? It is 0. It is what? 0. Is this clear, everybody? Noor and Hoor? Yes, sir. Beta, you have to alive this fact, okay? आपको इस fact को समझना है. अस्सलाम वालेकुम ईसा, how are you? Walaikum salam, sir. Fine. What about you? Hope you're doing well now. थोड़ा सा फोकस करो, ये पेपर 2 पेपर 1 है अक्टूबर नवंबर का, ठीक है? तो ये पेपर बिल्कुल फ्रेश है, तो आप इसको देख ले जरा. Now they say that expand राइट साइड पे आईजीसीएसई का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे जीसी का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो दोनों पेपर मैथ्स के ही हैं, तो क्वेश्चन मिक्स होते हैं, ठीक है? नाउ राइट साइड पे Yes. लिखा है एक्सपैंड. एक्सपैंड का मतलब है ओपन करें, एक्स को मल्टीप्लाई करें पूरी ब्रैकेट के साथ, लाइक दैट. सो ये हो जाएगा 3x. बेटा साथ साथ बोलते जा करें. 3x plus x cube. So this is the expanded form of this question. This is the answer. Is this clear, everybody? Any question in this? एक्सप्लेन करने की जरूरत है? हाँ जी. No, sir. No. Okay, we are done with the page number 1 of this side. So now we have to go towards this paper. अब जरा देखते हैं कि O levels का सेकंड पेपर क्या आया था. Okay, now that's very interesting question. अब जरा देख लीजिए क्वेश्चन बेटा. They say that the Sam has 6 square tiles labeled A, B, C, D, and E and F. We can see that 6 टाइलें सामने पड़ी हैं. When Sam places tile E and F side by side, resulting rectangle has no line of symmetry. मतलब कि इस इनको हम लोग, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, वी कांट फोल्ड इट, हम इसको फोल्ड नहीं कर सकते. अगर यहाँ से फोल्ड करो तब भी ये सही फोल्ड नहीं हो रहा, यहाँ से फोल्ड करो तब भी फोल्ड नहीं होगा, यहाँ से फोल्ड करो तब भी ये फोल्ड नहीं होगा, यहाँ से फोल्ड करो तब भी ये फोल्ड नहीं होगा. मींस दो लाइन सिमेट्री. ठीक है बेटा, काशिफ समझ आ गई दो लाइन सिमेट्री की? यस सर. कि जब हम किसी शेप को फोल्ड नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट नो लाइन सिमेट्री. जब फोल्ड कर सकें तो मतलब कि हम लोग उसको उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है. Now write down two tiles that Sam should place side by side to make a rectangle that has a one line symmetry. ऐसी कौन सी दो टाइलें हैं जिनको एक साथ रखें तो उनकी वन लाइन सिमेट्री आ जाएगी? जरा देखें, जरा ऊपर टाइलों में देखें. ऐसी कौन सी दो टाइलें हैं जो कि मिरर इमेज लग रही है एक दूसरे की? जी जरा सी गौर एफ करें और इन. जी सी एफ और डी आई थिंक. नहीं, सी और डी लग रहा है, लेकिन सी और एफ नहीं लग रहा है. ठीक है, सी और डी लग रहा है. एग्री? सर अगर दरमियान में हो जाए सर, अगर एफ के दरमियान में हो जाए तो फोल्ड होता है ना.
नहीं, फिर नहीं फोल्ड होगा, आप देखें ना, एफ एक ही है और एफ की कोई मिरर इमेज हमारे पास मौजूद नहीं है। नजर आ रहा है आपको? हमें ये लग रहा है कि ये आपने ठीक बताया कि दैट सी और डी जो है ये एक दूसरे के फ्लिप इमेजेस लग रहे हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अगर मैं सी के साथ डी, नूर, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ डी टाइल ओवर हियर, मैं अगर यहाँ पे डी टाइल बना लो, इज दिस क्लियर नूर? नूर, कैन यू सी दिस? क्लास में। ओके ओके, अस्सलाम सर। सो वालेकुम सलाम। अब मैं ये डी टाइल जो है ये सी के साथ बना रहा हूँ, तो ये मैंने डी टाइल जो है ये सी के साथ बनाना शुरू कर दिया है। एक डब्बा ये शेड है और ईसा एक डब्बा ये शेड है। कहना है काशिफ, क्या मैं इनको स्प्लिट कर सकता हूँ राइट फ्रॉम द वेरी सेंटर? Yes, sir. देखो, क्या मैं इनको फोल्ड कर सकता हूँ? सो सी एंड Yes, डी sir. इज द टाइल विच हैव वन लाइन सिमेट्री। इज दिस क्लियर ईसा? समझ आइए मेरा बेटा? अच्छा। जी सर। देखें ना आप, ये यस डी टाइल को आप अगर फोल्ड कर दें तो ये सी के ऊपर यस चला सर, जाएगा मुझे समझ हूबहू। आ रही है। सो इसका मतलब है कि वन लाइन सिमेट्री की दो शेप्स हैं, सी एंड डी। चलें जी, इसको हम बंद कर लेते हैं। ओके, इस सब जरा देख के बताओ, which two tiles have the rotational symmetry of order 2? मुर्तजा, आप नए आए हैं अभी, तो अभी सुन लें। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब ये है कि एक शेप को जब 360 पे आप रोटेट करते हैं तो कितनी दफा वो अपनी एक्चुअल हालत में आती है, ठीक है? जी अब सर। ये कह रहे हैं कि रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 मतलब कि 360 में 2 टाइम्स जो है ये अपनी एक्चुअल हालत में आएगी। तो दो कौन सी टाइलें हैं जिनको हम साथ साथ रखें तो रोटेट होकर भी ये 180 के बाद भी वो सेम चीज रहेगी? जरा देखें जरा प्लीज। ए के साथ ई ड्रॉ करूं एवरीबॉडी? यस सर। देखें, ए के साथ ई जरा ड्रॉ करते हैं, ये ई, ए और ई कुछ मिलते जुलते हैं, तो इसको जरा ड्रॉ करते हैं इस साइड पे और ट्राई करते हैं। आपने पेपर में भी ऐसा ट्राई करना है, ठीक है बेटा? तो ये ट्राई कर लिया मैंने, लाइन लगा दिया। बेटा उष्णा आपके साथ है? जी सर। ओके, ई टाइल का नाम मैं इधर लिख देता हूँ, दैट इज ए टाइल। वो तो पता कि ए ही है। उष्णा देखो, ई में सेकंड टाइल शेडेड है, तो ये सेकंड टाइल शेड हो गया, ठीक है जी? ओके, और ये लास्ट वाला टाइल भी शेडेड है, तो ये भी हो गया। ओके काशिफ, काशिफ जी सर। जी बेटा सर। इन बेटा अगर ई ए टाइल को 180 पे रोटेट कर दूं मैं, ठीक है, जी सर। तो ई की जगह पर आ जाएगा और ए ई की जगह पे चला जाएगा। इज दिस राइट और नो? यस और नो? ये थोड़ी सी विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम इसको 180 पे रोटेट करें, इफ वी रोटेट 180, so shape remains same. Yes or no? Agree or यस not? सर। यस Shape सर। remains same. बेटा ऐसे यस ना बोले, अगर समझ नहीं आती तो बताएं, मैं और तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता हूँ सर, आ फिर। गया, समझ आ गया। ओके, हूर आपको समझ आ गई बेटा? Yes, sir. Okay, so we can see that E and A are two tiles which have a rotational symmetry of order 2. अगर ईसा 360 में इसको रोटेट करेंगे तो एक दफा 180 पे ये अपनी एक्चुअल हालत में आ जाएगा, फिर दोबारा 360 पे दोबारा आ जाएगा। यस और नो? और ये नंबरिंग के जरिए भी आप देख सकते हैं, जरा देखिए, मैं इस पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपको नजर आ रहा है क्या नाम है काशिफ एंड मुर्तजा, that in the top 2 and 4 is shaded and in the bottom 2 and 4 is also shaded? Yes or no? यस सर। यस सर। चलो, यस। दैट्स वेरी गुड। तो ये हो गया जी आपका पार्ट। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये हो गया जी, हमने पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ओ लेवल्स का कर लिया है। तो अब आईजीसीएसई का पेपर 2 में देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन आ गया जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। Now we can see that in this question,
Okay, now we can see that in this question, Gina buys 2.4 meter ribbon and 4.8 meter fabric. अच्छा, जीना ने दो चीजें खरीदी हैं, एक रिबन खरीदी है and ribbon is 2.4 meters. ओके, एंड दूसरा उसने खरीदा है फैब्रिक, और फैब्रिक खरीदा है ईसा 4.8 मीटर का। ठीक है बेटा, द टोटल कॉस्ट इज 33.4। इसका मतलब है टोटल में होगा रिबन प्लस फैब्रिक। ओके, रिबन का टोटल खर्चा आया है 0.85 पर मीटर, तो इसका मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई विद 0.85। ठीक है जी। हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फैब्रिक निकालनी है। पहले टोटल कॉस्ट ऑफ फैब्रिक चाहिए होगी, तो रिबन पहले हम फाइंड कर लेते हैं। सो कैन आई राइट 24 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइड बाय 100? यस और नो? यस और नो Yes, sir. एवरीबॉडी? ओके, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि हम डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो अभी पहले मैंने जरा ये तरीका कर चुका हूं, तो मैं अब जरा डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूं, ताकि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोगों को आ जाए। ठीक है, ओके एवरीबॉडी प्लीज फोकस। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग टू डेसिमल्स हियर। मैं दो डेसिमल्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2.4 मल्टीप्लाई विद 0.85। while multiplying I'll just write here that is 1 decimal place Kashif and that is 2 decimal place। ठीक है बेटा? जी ठीक सर। है बेटा, क्लियर? ओके, जब वंस आई रोट दिस 1 dp 2 dp, इरेज द डेसिमल नाउ। अब डेसिमल को इरेज कर दें, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। 5 4s are 20, 2 goes up, 5 2s are 10 plus 2 is 12, so क्रॉस आ जाएगा। ओके, नाउ 8 4s are 32, तो 2 इधर आ गया एंड दिस इज नाउ 3। 8 2s are 16, 16 plus 3 is 19, क्रॉस आ गया। अब डबल क्रॉस लगेगा। ओके, अब 0 4s are 0 एंड 0 2s are 0, तो क्रॉस हो गया, तो 0 4 10, तो ये हो गया 20.2040। ओके, नजर आ रहा है सबको? नाउ इन द आंसर काशिफ 1 plus 2 3 dp। अब आपने 3 डेसिमल प्लेस के बाद आंसर लगा, पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3, सो द आंसर इज 2.04। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है बेटा? यस और नो? Yes, sir. काशिफ क्लियर है? ईसा क्लियर है? यस सर। ओके, जी क्लियर है। नाउ total cost is ईसा total cost is $33.48। सो फैब्रिक की कॉस्ट निकालते हैं पहले, फैब्रिक कॉस्ट। तो फैब्रिक की कॉस्ट आई है आपके पास 33.2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8, या ओके $33.48 टोटल आ गया, माइनस $2.04, 2.04 सो 8 में से 4 गए तो 4 आ गया, 4 में से 0 गए तो 4 आ गया, 0.3 में से 2 गया, $31.44 जो है इट्स अ फैब्रिक कॉस्ट। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? Now he यस सर। bought 4.8 meters, so we have to divide 31.44 divide by 4.8 per meter cost of fabric। मुर्तजा समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. 31.44 divide by divide by he bought 4.8 meters। so काशिफ जरा कैलकुलेटर पे कर लें इसको डायरेक्टली बस, क्योंकि आपको 6.55। कैलकुलेटर। so $6.55 is the cost of 1 meter fabric। is this clear everybody? यस यस सर। सर। Okay, now these are the first 5 terms of a sequence। write down the next 2 terms so we can see that what is going on। Okay, so 27 minus 1 is 26, 26 minus 3 is 23, 23 minus 5 is 18, and 18 minus 7 is this। so next 2 term, तो आगे क्या माइनस हो रहा होगा बेटा, बताइए जरा। -2। नो, देखो जरा, 11 - 9। -1 11 -3 - माइनस, 9 is 2। yeah, well 11 minus 9 is 2, and अभी दोबारा क्या होगा ईसा? -9। ईसा जरा दे,
-9 नहीं ना, आप डायरेक्ट आंसर ना बताएं, डिफरेंस क्या होगा नीचे, पहले 11 -1 माइनस हुआ है, 11 yes, so that is -11, so 2 minus 11 is what? -9 Very good, so these are the two terms of this sequence. समझ आ गई बेटा? Is this clear? yes sir Okay, now they say that the sequence A about two different n term निकालना है, तो ईसा जरा पहला sequence देख के बताएं, what is sequence A? Look at the sequence A, 3, 10, 17, 24, 31. n term का मतलब है we make to formula, हमें formula बनाना है इसका, तो first of all we should know that according to the question we can see that it's at 7, yes or no? Yes or no? Isa, can you hear me? Means sequence is arithmetic sequence, ये एक arithmetic sequence है. Arithmetic sequence क्या होता है? एक ऐसा sequence होता है जिसमें when we get a new value by adding or subtracting something. So arithmetic sequence, it has a formula that an is equals to a1 plus n minus 1 into d, where a1 is the first term, a1 पहली term को बोलते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, it's 3 plus n minus 1, or difference is plus 7, we can see that add 7 is the rule, so 3 plus 7n minus 7, so 7n minus 7 plus 3, and 7n minus 4 is the formula. So Murtaza, अगर मैं यहाँ पे 7n minus 4 लिख रहा हूँ एज अ फॉर्मूला, मुर्तजा कैन यू सी दैट? सर इसकी समझ नहीं आई। खैर ये आपने पढ़ा नहीं है बेटा, ये आप खाली इसको जरा गो थ्रू कर लो कि आपकी आंखों के नीचे रहे, ये पढ़ना है अभी हम लोगों ने, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ये पास पेपर से आपको मैं फेमिलियर करवा रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि पास पेपर चीज क्या होती है। बाज़ औक़ात बच्चे कोर्स पूरा पढ़ लेते हैं, उनको पास पेपर का पता नहीं होता। ओके सर। Okay, everybody please pay attention. Everybody, arithmetic sequence is a sequence in which we get a next term by adding or subtracting something. कल मैंने arithmetic sequence की एक वीडियो YouTube पे अपलोड की, आप लोग जरा देख लीजिएगा जाके, बहुत आसान है। देखो ना कि 3 plus 7 कर रहा हूँ 10 आ रहा है, 10 plus 7 कर रहा हूँ तो 17 आ रहा है, आपको नजर आ रहा है सबको? काशिफ, that 3, काशिफ yes sir बेटा गौर करें, that 3 plus 7 is 10, 10 plus 7 is 17, 17 plus 7 is 24, 24 plus 7 is 31. समझ आ गई? Yes or no? yes sir Okay, it means that the sequence is arithmetic. Isa, sequence is arithmetic. When we have a similar addition or subtraction, जब कोई ऐसा sequence आ जाए कि जिसमें we get a next term by adding or subtracting something, so that is what arithmetic sequence is. So मैंने क्या किया बिल्कुल ईसा, ये सारा sequence नीचे लिख दिया है, ठीक है? हमारे पर रूल आ चुका है कि रूल इज एट 7 means arithmetic sequence है, arithmetic sequence has a formula that an is equals to a1 plus n minus 1 into d. गौर करें जरा इस पे प्लीज, an हम फाइंड कर रहे हैं, a1 is the first term, तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म a1 लिखा है काशिफ, तो a1 का मतलब है 3, ओके, फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1, और d की वैल्यू आपके पास 7 है बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू द होल सीक्वेंस इज 7. यस और नो मुर्तजा? yes sir यस सर। ओके, देखिए जस्ट मैंने क्या किया, a1 की जगह पे 3 लिखा है और d की जगह पे 7 लिखा है। अब अकॉर्डिंग टू द मैथ कॉन्सेप्ट पहले ब्रैकेट के साथ 7 को मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 7n minus 7. इज दिस क्लियर? नाउ आई नो दैट -7 plus 3 is -4. एग्री? yes sir अब आई गॉट द फॉर्मूला दैट 7n minus 4 इज द फॉर्मूला, जरा प्लीज चेक करें काशिफ, मेरा बेटा ये 7n minus 4 में n की जगह पे जरा 1 पुट करो। अच्छा जी 7 1 जा 7 minus 4 क्या आता है? -3 क्या फर्स्ट टर्म पे 3 लिखा हुआ है? yes sir जरा n की जगह पे 3 पुट करो, देखो 17 आता है कि नहीं? 7 3 जार 21 21 17 minus 4 17 आ रहा है 17? आ रहा है यस सर आ रहा है ओके मुर्तजा n की सर जगह पे 5 पुट करो, देखो 31 आ रहा है कि नहीं? सर जी बेटा, जी सर। आप बीमार है जी बेटा, आप बीमार है
बेटा तबीयत ठीक नहीं है मेरी भी, अपनी भी, लेकिन फिर भी मैं क्लास तो मैं ले सर रहा वो हूँ। आप मेरे साथ उस दिन गए थे, मुझे लगते हैं मुझसे आपको भी लग गया सर। बस हो सकता है शायद, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसी दिन सर से मेरी बस मंडे तबीयत ठीक नहीं। मंडे को क्लास ना ले, आराम करे कि सर आप ठीक हो जाए, वरना फिर हम नहीं, क्या मैं ठीक करेंगे। हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लो। आप सर फिर आगे बीमार हो जाएंगे ना, अल्लाह खैर करेगा बेटा, बस फ्यूचर अच्छी के लिए सोच पहले से रखो। सोचना पड़ेगा। ओके, 7 5 35, एग्री मुर्तजा? और 35 -4 31 आ रहा है ईसा? जी इसका जी मतलब है ईसा कि हमने फॉर्मूला ठीक बनाया है। जरा दूसरा सीक्वेंस देखें सब यार। 2 11 26 47 74। ईसा, फर्स्ट डिफरेंस कितना है जरा देखो पहले दो के दरमियान में, व्हाट इज द डिफरेंस? सर 9। वेरी गुड, इट्स +9। ओके, यहाँ पे क्या है जी? 9 लकी नंबर है। मुर्तजा, मुर्तजा, जी सर। यहाँ पे क्या है डिफरेंस? सर यहाँ पे है डिफरेंस सर 15। 15 सर। +15 बोले ना? ओके, यहाँ पे डिफरेंस बोले 26 प्लस व्हाट इज सर 47? +20 20। +21 +19। ओके, और यहाँ पे सर +27। चेक करो ना, 74 अभी चुप हो गए, नहीं -47 करो। आता, कैलकुलेटर से करो ना यार। करें ना, सर कैलकुलेटर से करें, 27 आपका ही तो है सर, कैलकुलेटर। 27 ही है। 27। ओके, जी अब देख रहे सर हैं कि फर्स्ट 27। डिफरेंस, उष्णा कैन यू सी दैट द फर्स्ट डिफरेंस इज नॉट सेम? सेकंड डिफरेंस जरा चेक करें इसका, क्या आपको नजर आ रहा है कि +6 हो रहा है? जी सर। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से रिवर्स जाऊं तो मैं इसमें +6 कर सकता हूँ, यस और नो? अगर मैं यस। ऊपर वाला टर्म चाहता हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 27 + 6 क्या आता है, 33, और 74 + 33 क्या होता है, तो नेक्स्ट टर्म मैं निकाल सकता हूँ, यस और नो? यस और नो? 74 + 33 is what? 74 + यस सर। 33 is 74 + 33 is सर 107 आता है, यस और नो? 107। ठीक है ना? और देखो यहाँ पे यस भी सर। +6 है। इस whenever we have a second difference same, it means that the sequence is what? It's a square sequence. It is what? It is what? A square sequence, quadratic sequence होता है ये। ठीक है, चलो बस ये quadratic sequence अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ये आराम से मैं आप लोगों को करा दूंगा, ये मुश्किल चीज है थोड़ी सी, इसको मैं लीव कर देता हूँ अभी। सर ये इसके ऊपर मंडे मैं को पूरी, कर लेते हैं फिर। नहीं अभी मंडे को तो टेस्ट है हमारा ना, तो वो टेस्ट के बाद हम गप लगाएंगे, ठीक है? सर मैक में चार्ज कम हो रहा है, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा। चले सर जी, देखिए जी। सर जी बेटा। सर अभी मैं वो टेस्ट के लिए पास्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहा था सर, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे तस्वीर सेंड कर दूं सर? हाँ भेज दो, कोई बात नहीं। ओके जी, ओके। इधर देखें जी। ओके, काशिफ, रीड द क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 on the left hand side. The perimeter of a regular hexagon is equal to the perimeter of a regular octagon. अच्छा अच्छा, एक मिनट, we have some terminologies पर first of all discuss what is perimeter by the way, जिसको आता है वो बता दे। Sides. What Sum of is sides. perimeter? वेरी गुड, सो perimeter कहते हैं बाउंड्री को, sum of all sides, yes or no? Yes sir. ओके, हेक्सागन किसे कहते हैं? 5 sides. 6 6 sided sides. फिगर को। Octagon वाला 8 एंड होता है। यस, ऑक्टप इज 8 साइड, ईसा सही है? जी सर, क्या मैं कॉल पे था? ओके, ये हेक्सा को 6 साइडेड कहते हैं, ऑक्टा को 8 साइडेड, यस और नो? यस ट्रू। ओके, रेगुलर किसे कहते हैं, रेगुलर ऑक्टागन? सर जिसकी इक्वल साइड्स हो। ओके, ऑल साइड सेम, ऑल यस सेम। साइड सेम और ऑल एंगल्स भी सेम, यस यस और नो? सर। यस। दैट इज व्हाट अ रेगुलर शेप इज। ओके, कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, इसका मतलब है 6x, इट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन, सो दैट इज 8x। एग्री? ये दोनों बराबर हैं, एग्री? Yes पेरीमीटर sir. हम एक्स ले रहे हैं। हाँ, पेरीमीटर हम एक्स ले रहे हैं। पेरीमीटर नहीं ले रहे, साइड ले रहे हैं। 6 × x करूंगा तो साइड आ जाएगी ना, यस और नो? जी सर। पेरीमीटर ओके आ जाएगा। जी सर जी। ओके, ईच एज of the octagon is 9 centimeter, octa की given है, तो that is 8 9s are 72,
Divide by 2, divide by 6 on both sides. 12. So x is equals to 12 centimeter long is the edge of what one hexagon? Is this clear? सर जी भी वैसे भी होगा Okay, जरा देख लो बेटा. Perimeter of the hexagon is equal to the perimeter of the octagon. आपने खुद बताया सर hexa 6 को कहते हैं, octa 8 को कहते हैं, ठीक है? जी सर पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री को, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स. तो जाहिर सी बात है हेक्सागन का आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय साइड होगा ना. यस सर नो? यस सर यस सर क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने लिख दिया 6x इज इक्वल टू 8x, ठीक है? जी सर सेकंड लाइन में लिखा है कि ऑक्टागन की एक साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर की है, तो हमने 8 इंटू 9 करके 72 निकाल दिया. यहाँ पे 6 को डिवाइड कर दिया तो 12 हमारे पास आंसर आ गया है. समझ आई आ है? गया जी सर आइए थैंक यू सर ओके, माय प्लेजर. ओके काशिफ, हाउ टू सॉल्व दीज टू? वर्कआउट. नूर, हाउ टू सॉल्व सर दिस? कैलकुलेट कर सकते हैं सर ना कैलकुलेटर नहीं. हूर, अच्छा how to solve these two questions? The first one, 6 part A. Sir, make the decision same Denominator same denominator. करने हैं. Okay, so that would be 3 times 5 कर लो, so it would be 15, right काशिफ? सर ये मेथड मुझे समझ नहीं आती पता नहीं क्यों Okay, अब जरा देखो, whenever we add a fractions or subtract a fraction, सुने मेरी बात अच्छा, जी सर तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है, ठीक है? आप ऐसे नहीं कर सर, सकते पेपर में कि 11 माइनस 2 9 और 15 माइनस 3 12, ये रॉन्ग आंसर है. ओके, जी सर तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम यहाँ से जरा स्क्रीनशॉट ले लो. एक मिनट. अच्छा, डिनोमिनेटर सर ये सेम. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये उसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो उसमें तो स्ट्रेट आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं. 11 मल्टीप्लाई बाय 2 और 15 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स इट. ठीक है सही है ओके, अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं 3 को 15 बना सकता था, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? सर अब अगर नजर आ नहीं रहा है होता आपको कि अगर ना होता तो फिर मैं दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करता. मैं केस करता हूँ तुम्हारे साथ वो वाला भी, ठीक है? फॉर जी सर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 11 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 5, एग्री? यस सर तो आप राइट साइड की फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते इस साइड के डिनोमिनेटर के साथ, और लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते इस साइड के डिनोमिनेटर के साथ. देखो नीचे दोनों तरफ 10 बन रहा है कि परफेक्ट नहीं? सर बिल्कुल आ रहा है बिल्कुल आ ऊपर रहा है ऊपर ऊपर क्या भी बन रहा है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर ओके, 11 माइनस 10 इज व्हाट? पहले राइट द डिनोमिनेटर वंस, और 11 माइनस 10 इट्स 1 बाय 15. दैट इज योर फाइनल आंसर. अब जरा कैलकुलेटर पे तुम करके देखो 1 बाय 15 आ रहा है कि नहीं. ये डालो कैलकुलेटर में बॉक्स. 11 डिवाइड बाय 15 माइनस 2 डिवाइड बाय 3, जी सर दोनों डालने हैं. मुर्तजा आप भी डालें, हूर आप भी डालें. सर 1/20 आ रहा है. सर 1/15 आ रहा है 0.05. सर 1/15 आ रहा है मेरा आ रहा है जी 1 बाय 15. नहीं सर, मेरा 1/20 आ रहा है. 1 बाय 20 आ रहा है. सर मेरा 1/15 आ रहा है एक मिनट सबर करें. Okay, so 2 5s are 10 and 3 5s are 15. So 11 minus 10 is 1 by 15. And यार आप लोगों ने कोई गलती लिखी है कैलकुलेटर पे, जरा चेक करें आप लोग प्लीज. सर इन लोगों ने ये डिवाइड वाला साइन यूज किया होगा इसमें तो मैंने फ्रैक्शन किया है ना फ्रैक्शन वाला साइन माइनस माइनस, हाँ बेटा डिवाइड वाला साइन क्यों इस्तेमाल किया है? नहीं सर, फ्रैक्शन वाली इस्तेमाल की है. 3/10 डिवाइडेड बाय 6. 3 अपॉन 10 कैलकुलेटर की तरह सेट भाई. करके कर दो फिर हो जाएगा अच्छा अच्छा, ये नीचे वाला क्वेश्चन कर रहा है यार, ऊपर वाला करो. अच्छा, ऊपर वाला सर. ओ ओके ओके ओके, सॉरी सर. सही ओके, सही 3 सही. आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय, अभी देखिए यहाँ पे 6 बाय 1 है तो ये हो जाएगा 1 बाय 6. सो ये हो जाएगा 3 आउट ऑफ 60 एंड दैट वुड बी 1 आउट ऑफ 20. ये नीचे वाले का 1 आउट ऑफ 20 आता है, ठीक है? मैं मुर्तजा मैं नीचे भी वाले कहूँ कि का पता नहीं क्या हो रहा है. चलें जी, ये हो गया जी हमारा दूसरा पेपर स्टार्ट. ओके, सो लुक एट दिस. ओके जी, एवरीबॉडी प्लीज डू दिस विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर. 5 बाय 9 माइनस 1 बाय 6 करें जी. मुर्तजा, काशिफ एंड हूर.
Do it without using a calculator. 5 by 9 minus 1 by 6. सेवन बाई 18 क्या आ रहा है? 7 by 18 7 by 18. ओके जी, मुकाशिफ आपका क्या आ रहा है? नहीं सर, मेरा गलत है सर, मेरा गलत है। काशिफ आपने क्या किया है फर्स्ट स्टेप में, इधर मुझे बताएं। सर मैंने किया है कि जो 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 9 को 1 के साथ किया है। क्यों 6 को 5 के साथ क्यों क्यों मल्टीप्लाई किया है? सर राइट क्योंकि साइड 9 की और 6 फ्रैक्शन को 9 9 से मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन को 6 6 से मल्टीप्लाई करना है। 5 और 1 का क्या काम है? क्यों सर? सर ठीक है सर, देखो मेरा सही है, 7 by 18 ही आ रहा है सर। देखे जी, ये आपके पास क्वेश्चन है 5 by 9। आपने राइट साइड की फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया है। नजर समझ आ रही है? जी सर। ओके, और लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन को आपने राइट साइड की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। नजर आ रहा है आपको? काशिफ इन पोए पे समझ नहीं आ रही सर। आप बोलो जरा, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सर कह रहे कि 5 by 9 minus 1 by 6। My ओके, answer अब जरा मुझे is बताओ। हाँ 30 minus 9 by 54. ओके, वेट अ मिनट, लेट मी कंफर्म दिस आंसर। ओके काशिफ, राइट साइड का डिनोमिनेटर क्या है? सर 6। ओके, राइट साइड की फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। समझ आ गई? ओह अच्छा, इस तरह करना है, ठीक है सर। और लेफ्ट साइड को किससे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे? 6। ओके चलो, अब 6 5 are 30, 6 9 are 54 माइनस 9 डिवाइड बाय 54। क्या नीचे डिनोमिनेटर सेम It's हो चुके हैं? 21 by 54. ओके गुड हूर। सर सो फिर काशिफ, डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट? यस सर, सेम हो काशिफ गए। डिनोमिनेटर्स, जी सर, ओके जी जी, सर। तो राइट द डिनोमिनेटर वंस। 30 माइनस 9 कितना आता है? 21। सो दे बोथ आर डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 7  3 के by टेबल में 18 देखो दोनों आते हैं। सो 21 डिवाइड बाय 54 आता है, 3 7s आर 21 एंड 54 तो 18। सो 7 by 18 इज द फाइनल आंसर। जी सबका यही आया है? जी सर। Yes. चलो यस सर। दैट्स वेरी गुड। चले जी, चले जी, ये बाकी के डिस्कशन इंशाल्लाह ताला हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? कल की क्लास में आपको मैं ये वाले पेपर्स तो मैं अभी भिजवाता हूँ जो मैंने कर लिए हैं, ठीक है? आज के क्लास में हमने जो डिस्कशंस किए हैं कर ली। ये देखो काशिफ, आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि ये कैसे होता है, ठीक है? फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि यार यहाँ पर ये लाइंस ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री सर ने कैसे की है, समझ आ गई? जी सर, ब्रैकेट जी। कैसे लगाया है, क्यूब रूट क्या है, ऑर्डिनरी नंबर क्या चीज होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वो चीजें हैं बेटा जो बेसिक हैं। ये आपको मैथ्स में बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप जाके आगे कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पेपर मैं आप लोगों को सॉफ्ट में भिजवाऊंगा, वर्किंग नहीं भिजवा रहा हूँ।